Good morning, students. If the voice is Good morning, coming to ma'am. you, okay. So today we will discuss about notice writing first of all, and after it we will practicize it. ठीक है? All of you take out your copies and now write down the definition of notice. This chapter is related with the notice writing, so I want to give you some information about notice writing. Here is the topic, notice writing. All of you write down in your copies. A notice is an official. Students, what is notice? An official communication. Write down in your copy first of all, and after it I will tell you about format and other things. Okay, what is notice? A notice is related with the office. It means notice is an official communication. Okay, notice क्या होता है? Official communication होता है. Okay, then which announces or conveys some information. What is given there? Information. These are the main things I want to tell you. What is notice? A notice is an official communication and which is related with the information. Some every type of information, it means which is necessary for the students, for the parents, or we can say for the members of the office, and we can say staff of the office. Then we will write in the form of a notice. So notice writing, what is notice writing? A notice writing is an official communication which announces or conveys some information. Okay, or you may write informations are given, a piece of information is given in the notice. A notice is usually affixed on the notice board. देखिए, what is the next specialty of notice? Affixed on the notice board. ये notice board पर लिखा जाता है या फिर पेस्ट किया जाता है by an organization or institution. ठीक है, एक संगठन के द्वारा या फिर एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा टू अनाउंस एन इवेंट, सेलिब्रेशन और सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. देखिए, इसमें अनाउंस किया जाता है इवेंट को, सेलिब्रेशन को या सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, एटसेट्रा, related with other things also it may be. Have you written this, all of you? Yes, ma'am. It is necessary to write Yes, all of you. ma'am. Okay, so you should write first of all what is notice writing, and after it I will tell you something else and you will noted it in your copy also. All of you written or not? Give me answer. Hello students. Yes, ma'am. If all have been spoken, if all the student given me answer, has given me answer, all of you give me answer. Have you written this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now we will start main points. नोटिस राइटिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नोटिस राइटिंग में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर द मेन पॉइंट्स. दीज शुड बी इन योर माइंड व्हेन यू विल राइट नोटिस. जब कभी आप नोटिस लिखेंगे तो आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि ये पॉइंट्स जो हैं, दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर यू. समझ गए? फर्स्ट,
A notice is always written in a box. देखिए बॉक्स, आप अगर बॉक्स भूल जाएंगे आपका 1 मार्क काट दिया जाएगा. All of you listen carefully. That box is very necessary in that manner. Okay? जैसा भी आपका नोटिस हो उसके अकॉर्डिंग बॉक्स जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी. ये 1 नंबर होते हैं कम से कम इसके आपके. अगर मतलब 1 नंबर आपका कट सकता है, पहली बात तो वो मार्क्स देता है कि नहीं देता है, इट्स डिपेंड अपॉन हिम. ओके, हिम और हर. तो पहली चीज क्या है, अ नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन ए बॉक्स. क्लियर टू यू? लिख लिया पहला पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट है, इट शुड हैव द टाइटल विच इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. देखिए टाइटल जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता. बहुत सारे बच्चे जो है टाइटल को कंप्लीट सेंटेंस मान लेते हैं, तो इट शुडंट. जैसे अब मान लो आपके पास एक नोटिस है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है कंपटीशन में, या फिर ये मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है. तो ऐसा टॉपिक का ये नहीं है कि पूरी एक लाइन उठा के लिख दी. टॉपिक क्या होगा, जैसे राइटिंग कंपटीशन है, मान लो राइटिंग कंपटीशन फॉर एग्जांपल, तो ओनली यू विल राइट, सॉरी, इन कैपिटल लेटर. ओके, मतलब एक ही लाइन में आना चाहिए. मैंने 2 लाइन में लिख दिया. यहाँ पर जो आपके आएगा ये जगह, ये टॉपिक का प्लेस होगा, तो इस टॉपिक के प्लेस पर आप कैपिटल लेटर में टॉपिक लिखेंगे. पूरा ये नहीं है कि आप मैंने कुछ भी उठा के लिख दे. आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे और ये इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे. क्लियर टू यू? समझ आ गया? यस मैम. सभी बच्चे समझ लीजिएगा. जरा भी मार्क्स आपका कटता है आपकी गलती से कटेगा. मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. बाद में आप मत कहिएगा कि मेरा मार्क्स कट गया, 4 में से 4 नहीं आए. वट एवर इज नेसेसरी आई एम टेलिंग यू. फिर मैं आपको लिख के भी बता दूंगी, सारी चीजें कर दूंगी. लेकिन फिर भी मार्किंग आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कैसा करके आते हैं काम. ओके, डन. It should always have the name, the designation and the signature of the issuing authority. देखो यहाँ पर मान लीजिए ये हर जगह बॉक्स बनाना भी पॉसिबल नहीं, मैं बना दूंगी, आप मैं बाद में समझा दूंगी. नाउ सी, जैसे ये बॉक्स है तो अब इस साइड में हमको क्या लिखना होता है, यहाँ पर पहले सिग्नेचर. ओके, सिग्नेचर यहाँ पर, उसके मतलब ये बड़ा बॉक्स बनेगा उस हिसाब से. पहले मैं इसकी सिर्फ इस पर हाईलाइट कर रही हूँ इसलिए आई एम टेलिंग यू. सबसे पहले सिग्नेचर, उसके बाद आपका नेम आएगा कैपिटल लेटर में. कहीं पर भी कुछ गलत लिखा, किसी भी और तरह से लिखा, आपके नंबर कटे, हमको मत कहना. सब चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना. नेम के बाद डेजिग्नेशन आएगा. जैसे आप देखो डेजिग्नेशन उसमें मत लिख देना. कोई इतना मूर्ख होता है कि वो डेजिग्नेशन यहाँ पर भी लिखने लग जाता है. ठीक है, आप यहाँ पर डेजिग्नेशन, ये नहीं है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ केवल, लेकिन आपको पोस्ट का नाम लिखना है. अब जैसे मान लो यहाँ पर सिग्नेचर किया, फिर अपना नाम लिखा पूरा. अब यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मान लो पोस्ट है जैसे पीजीटी, तो मान लो पीजीटी इंग्लिश, तो पीजीटी इंग्लिश. आया ना समझ में? ये ब्रैकेट में डाल सकते हैं हम. ठीक है, आ गया समझ में सबको?
किस तरह से करना है? हेलो, Yes, ma'am. क्या लिखना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? Signature. सिग्नेचर। उसके बाद Name. नेम, और उसके बाद पोस्ट। अब जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे मान लो हेड बॉय के लिए है या किसके लिए है, तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा। समझ रहे हैं ना? बहुत कंजेस्टेड हो गया इसलिए हटा रहे हैं। सबसे पहले सिग्नेचर, फिर नेम, नेम भी कैपिटल लेटर में, फिर डेजिग्नेशन, हम चाहें तो ये इसको ये ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। और जैसे हेड बॉय है कोई, तो वो हेड बॉय के नाम ऐसे लिखेगा। A notice is generally written in complete sentences, but at time phrases are also acceptable. देखो बच्चों, नोटिस जो है जनरली कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखा होता है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर फ्रेजेस भी एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे फ्रेजेस एक्सेप्टेड कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको अभी एक टॉपिक जो आपको बताया था, जैसे कबड्डी टूर्नामेंट। अब हमने क्या, कबड्डी टूर्नामेंट और राइटिंग कंपटीशन जब हमने लिखा था, तो इसके अंदर हमारा पूरा सेंस नहीं निकल रहा था, यानी सेंटेंस नहीं था, बट क्या था वो पूरा आपका फ्रेज थी पूरी, और वो एक्सेप्टेड थी। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या मतलब है कहने का? हेलो, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो वो फ्रेज जो है वो आपके काम आएगी, फ्रेज आप यूज कर सकेंगे। जैसे लिख दिया, मान लो एक सेंटेंस आपने मान लीजिए ये लिख दिया, अटेंडेंस इज मस्ट। चलो ये तो पूरा फिर भी सेंटेंस हो गया। और या फिर ऐसे, मतलब कि कहने का मतलब है अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस वांटेड अगर लिखा है, मान लो फुल अटेंडेंस रिक्वायर्ड या वांटेड, तो ये जैसा का तैसा ही आप वो मान लीजिए फ्रेज हो जाता है, तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होता है, फ्रेज करेक्ट होती है, आप फ्रेज का यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट, as a notice usually announces an upcoming event, celebration, etc. So future time references is used while writing a notice. ये देखो बच्चों, ये मेन चीज है, आप इसका याद रखिएगा कि ये जो है आपका नोटिस यूजुअली क्या होता है, अनाउंसेस होता है अपकमिंग का, यानी जो इवेंट होने वाला है उसका अपकमिंग का अनाउंसमेंट होता है। ओके, तो सो फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग ए नोटिस। अच्छा, फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस कैसे? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस? क्या आप बता सकते हैं, कई बच्चे बता सकते हैं, कोई भी, कि फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस कैसे यूज किया जाएगा? मान लीजिए राइटिंग कंपटीशन है, तो आप कैसे फ्यूचर टाइम का इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? कल होगा, ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेंटेंस देयर? रिद्धि बताइए क्या सेंटेंस होगा? फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन होगा जब
आप कल आपके यहाँ राइटिंग कंपटीशन है स्कूल में, देन व्हाट विल यू राइट? क्या लिखोगी? नॉट ओनली रिद्धि बट ऑल्सो अदर्स कैन स्पीक. बताइए. If the voice is coming to you, you are not giving answer. Give me fast. Ma'am, writing competition will be held tomorrow at अच्छा, will be held tomorrow. Okay. Any other way? Any other way to express? किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है या चल ही नहीं रहा दिमाग बिल्कुल? मैम ऑर्गेनाइज्ड भी लिख सकते हैं. मैं और किसी से भी पूछ रही हूँ, बाकी सब एकदम मुंह बधिर होके क्यों बैठते हैं क्लास में, डम होके? दे शुड गिव आंसर. हाँ जी बोलिए. The school is going to organize Yes, handwriting good, good, competition good. or writing I want competition. it. I want it. The school is going to organize a writing competition tomorrow, or you can be date can be given. देखो बच्चों, बात इतनी सी है कि जब फ्यूचर प्रोग्राम सेटल हो जाता है तो आपको पता है कि ये मूविंग एक्टिविटीज जो है, मतलब इट मीन्स बाद में मूविंग एक्टिविटीज है या नहीं है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज ही यूज किया जाता है ऑलमोस्ट, और ये करेक्ट लैंग्वेज है और ये कोई भी आपका मार्क्स इसमें काट नहीं सकता. ओके. आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ राइटिंग कंपटीशन इन द स्कूल प्रेमिसेस. कनिका, इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया आपको? यस मैम. विल बी हेल्ड अपन परफेक्शन के लिए. अगर आप लगता है आपको और आपने यूज कर लिया, मार्किंग में भी काट दिया जाए, तो जैसे ग्रामेटिकल हम टेंसेस पढ़ते हैं, टेंसेस के अंदर क्या होता है कि फिक्स प्रोग्राम जो है आपका, मूविंग एक्टिविटीज है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, कौन सा टेंस लेते हैं भाई? आपको पता है ना कौन सा टेंस लेते हैं ऐसे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हाँ जी, तो इसलिए. ओके, समझ आ गया आप लोग को? नेक्स्ट, अ नोटिस शुड हैव ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द इवेंट. देखो बच्चों, एक नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपका. आपको एक भी चीजें गलत नहीं कर सके, इसके लिए हम एक एक चीज को अलग अलग एक्सप्लेन करना चाहते हैं. सो व्हाट इज हियर? देखो, ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द इवेंट. कुछ फालतू का चीज नहीं लिखना होता है नोटिस में, याद रखिएगा. इज इट क्लियर? इसमें ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द इवेंट, इट मस्ट हैव एन आंसर टू व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. ओके. क्या राइटिंग क्या सेलिब्रेट हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? Writing What is going competition. on? Writing Yes. competition. हाँ, a writing competition is organized. When it is organized, second point, it is organized. कौन सी डेट बता दीजिए, कल की डेट बता दीजिए. तो ऑन ट्यूसडे. ओके, ऑन ट्यूसडे, डेटेड, जो भी है डेट लिख दो. ओके. वेयर इज सेलिब्रेटेड? in the school premises. Okay. Premises. हाँ. Why is it celebrated? Yeah. Why is it organized? To improve the handwriting of the students. हाँ. This is the main reason. Okay. And how is it celebrated? You give your name to your class teacher, okay, and only first of all you will give their writing page, only selected one will participate in it. Okay. और या फिर the form should be fulfilled in the given time only today, and yeah, you may write your name should be given to the class teacher by today.
ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये सारा पॉइंट आपको कवर करना होगा जब आप नोटिस लिखेंगे। क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट है, सारा लिखा हुआ देखूंगी मैं आपकी कॉपी में, याद रखिएगा। नाउ द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड एक्यूरेटली एंड कॉन्सियसली। ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे इट शुड बी प्रेजेंटेड एक्यूरेटली, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और कॉन्सियसली मतलब कि रिलेटेड विद योर कॉन्शियस, इट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट और शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। समझ गए? परफेक्ट एंड शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, नेक्स्ट है द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ गए? कोई ऐसी लैंग्वेज इसके अंदर नहीं चलती है जो इनफॉर्मल हो। ऑलवेज यू विल यूज फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, Yes, ma'am. अब हैव यू रिटन ऑल द सेंटेंसेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody should be written, otherwise Yes, ma'am. I will check your copy. It should be clear to you because of it is very necessary. Main points आप headings जो main है, जो मैंने points main बताए हैं, उन पर आप फोकस करिए, उनको अंडरलाइन करिए, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। बच्चों, ये वाला जो फॉर्मेट है सीबीएसई का है वैसे तो, लेकिन इसमें कोई सीबीएसई और कोई आरबीएसई नहीं है। लिसन, नोटिस एकदम क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, अब ये आपका आरबीएसई का फॉर्मेट दिया गया जाता है। आरबीएसई वाले इस तरह का फॉर्मेट देते हैं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो हियर। नाउ I want to tell you about the format of RBSC. You should also write it. कोई डाउट नहीं हो जाए आप लोग को, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। नोटिस राइटिंग फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू RBSC। बच्चों, सबसे पहले, नहीं, ये भी CBSE का ही है, कोई बात नहीं, आप सुन लो। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, बड़ी कैपिटल लेटर में देखो बीच में लिखा हुआ है, इसलिए मैं अलग जगह पर लिख दूंगी आपको। अब मैं आपको तुमको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, एक चीज आपने देखी इसमें कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने, और अच्छी तरह से लिखिएगा, आपकी राइटिंग बढ़िया लिख के। जैसे हम ऑलमोस्ट बच्चों को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही लिखाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्कूल का नाम अगर उसमें दे रखा है तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखना है। क्लियर टू यू? तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए।
This one should be in capital letter. Understand all of you? Hello students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरे बच्चे इस बात पर एक एक चीज पर फोकस करें, बाद में मार्किंग कम हो, आई डोंट नो एनीथिंग. मार्किंग के लिए ही पढ़ा रहे हैं हम, पूरा का पूरा मार्क्स आना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड दिस वन? ठीक है. और ये यहाँ पर आएगा जो बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे जहां पर इन्होंने ये लिख रखा है नेम एंड एड्रेस इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज, यहाँ पर रेट लिखेंगे. उसके ठीक नीचे आप अपन डेट लिखेंगे. लेकिन उससे पहले हम ध्यान रखें, नोटिस यहाँ पर आएगा बीचों बीच में. इन्होंने यहाँ लिखा है, हम तो यहीं लिखाते हैं अभी तक ही. ओके, ये ऊपर हो जाएगा, उसके बाद बीच में नोटिस हो जाएगा. अब ये नोटिस के नीचे आएंगे डेट. समझ रहे हैं? आप कॉपी निकालो, बॉक्स बनाओ. कल मैं देख रही हूँ आप लोग के सामने वेडनेसडे को जो आप आओगे तब मैं देखूंगी आप लोगों का. तो सबसे पहले क्या लिखा होगा आपका ऊपर ही ऊपर? सबसे पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर सेक्टर 5 जयपुर. ओके, सेक्टर 5 प्रताप नगर जयपुर. नोटिस बीच में. उसके बाद डेट इसके नीचे आएगी. जैसे डेट मान लीजिए 4 अक्टूबर, तो 4 OCTOVER, अक्टूबर मत लिख देना. 4 अक्टूबर 2021. क्लियर? आगे समझ में? अब है मेन हेडिंग. मेन हेडिंग जैसे राइटिंग कंपटीशन मैंने आपको उतनी देर से यही बताया है, तो यही देख लो. मेन हेडिंग क्या आएगी? राइटिंग कंपटीशन. COMPETITION. आगे समझ में बच्चों? ये सब बीच में होना चाहिए. ठीक है? क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बॉडी ऑफ द नोटिस गिविंग रेलिवेंट डिटेल्स इन 2 पैराग्राफ्स. देखो बच्चों, ये 2 पैराग्राफ्स मांगते हैं. उधर RBSC बोलता है 50 to 60 वर्ड्स. ज्यादा लिख दोगे मार्क्स कट जाएगा. समझ रहे हैं? क्लियर? Yes, ma'am. तो क्या करें बताओ? इसमें हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 2 पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, 1 पैराग्राफ लिख देंगे. RBSC वाला 1 पैराग्राफ मांगता है तो हमें एक पैराग्राफ लिखना है. ओके, ये CBSE का था तो पैटर्न, इसलिए हमने इसमें बॉडी ऑफ द वो 2 पैराग्राफ लिखते हैं. अगर आपने 1 पैराग्राफ में लिख पाए तो ठीक है, नहीं दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी फ्रॉम हियर एंड सेकंड पैराग्राफ शुड बी फ्रॉम हियर. इसीलिए उन्होंने यहाँ लिखा है. ये समझ गए? 1 पैराग्राफ अपना हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ उस जगह को छोड़ के थोड़ा सा लिखा जाता है. अब अगला, अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, इंस्ट्रक्शन टू द रीडर्स मेंबर्स. कोई इंस्ट्रक्शंस है तो लिखने हैं. जैसे अटेंडेंस इज मस्ट, ठीक है, पार्टिसिपेशन इज मस्ट लिख दो मान लो तो भी चलेगा. अब सिग्नेचर आ गए. फिर यहाँ पर क्या आ गया आपका? सिग्नेचर के बाद क्या आएगा यहाँ पे? Name. नेम कैपिटल लेटर में. नेम के बाद क्या आएगा? Designation. ठीक है, ये हो गया आपका. अब इतना समझ में आ गया आप लोग को नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, और नोट डाउन कर लो और क्लास में करवा दूंगी मैं. हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके बच्चा. Yes, ma'am. ठीक है,
तो अब देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स. ये इसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ के इन्होंने यहाँ पर डाल दिया, कोई बात नहीं. यहाँ पर फुल नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन. ठीक है बच्चों. अब ये आरबीएससी का है. अभी टाइमिंग्स कितना है आप लोगों का? 10:20 तक की क्लास है आई थिंक. तो दैट्स Yes, वाई ma'am. हो गए हैं टाइम. आई विल टेक 10th class, so I want to close. All the things are clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you noted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To note is necessary, okay? All of you should write in your copy, in your fair copy, okay? Now I want to close.